Good morning, dear students. So, some of these things or the explanation will remain. So, today I am going to explaining these all things. Okay. So, the very first is begging. So, begging. These all are hard words. So, begging. So, how to pronounce it? This word, begging. So, that is begging. Okay. And second is whispered. Whispered. So that is whispered. Whispered. Okay. And the next is companion. 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 Okay. Companion. The fourth is toward. To what? To what? Okay. The fifth is exclaimed. 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 Okay. And then there are many words like advanced, advanced, advanced. Okay. The seventh is engrossed, engrossed, engrossed. Okay. Engrossed, engrossed. Okay. The eighth one is respectively, 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 respectively. Okay. Then the ninth one is that is successful, successful, successful. Okay, successful. So I hope you have learned to pronunciate these terms. Okay. Now the next is word meaning. So what are word meanings? Let's see. The very first is kid. Kid, young one of God. Young one of a God. That means God, goat का जो बच्चा होता है उसे हम kid बोलते हैं. ठीक है. Cheat, one who deceives anyone. One who deceives anyone. जो किसी के साथ cheat करे तो they are cheat. Be fool, to make fool of anyone, किसी को पागल बनाना. Whisper, to make in a very low tone, एक धीमी आवाज में बोलना. ठीक है. Companion, companion, partner, that is साथी. Okay. Now sixth is disgrace. Disgrace, that means insult. Insult. Okay. The seventh is grumble. Grumble, to murmur with discontent, एक तरह से बड़बड़ाना, बड़बड़ाना. ओके. To murmur with discontent. Enraged, enraged, that is angry. Enraged, ठीक है, that is angry. Venture, venture, that is dare and not afraid. Dare or not afraid. Okay. Then some of the make sentences. Okay. So here I had tried to explain that how can we make sentences by using a word. हम लोग कोई भी word से किस तरह से एक पूरा sentence बना सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे. ठीक है. Like companion, companion. So the sentence that we can form, that is his friend is companion. His friends, his companion in the journey. His friends are companion in the journey. I just forget to type here are, so please correction. Okay. And then next is venture. I venture to say but you are not doing right. I venture to say but you are not right. Okay. Then the third is enraged. Enraged, teacher enraged on children on their poor marks. Okay. Then the fourth is grumble. Grumble, he started grumbling. Okay. Now बच्चों आफ्टर दैट मेरा क्या है कि इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन भी रह गया था, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ. ठीक है. यस, दीज आर हियर. सो वी शुड नॉट स्पीक द वर्ड्स अनोइंगली. Oh, sorry, this is not the sheet. 1 minute. Yes, these are the exercises. The very first is the Brahmin's name was. Brahmin का नेम क्या था? The Brahmin name was Ramdev. The Brahmin's name was Ramdev. Sorry.
Second is the cheats were very hungry. The cheats were very hungry. ठीक है, जो चीट थे वो बहुत भूखे थे. और ब्राह्मण का नेम क्या था? ब्राह्मण का नेम रामदेव था. ओके. अब नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे की क्वेश्चंस पर आते हैं. सो दीज आर हेयर. ठीक है, तो यहाँ एक जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है. सो यहाँ जो क्वेश्चन कटा है उससे रिलेटेड क्या है कि इसमें पूछा गया था कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो किसने कहा था. तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है चीट ने कहा था. फर्स्ट चीट ने क्या बोला था? फर्स्ट चीट ने बोला था कि आप ये अपने साथ एक डॉग कहाँ लेके जा रहे हो. ठीक है, उन्होंने उसको किड को क्या बताया था? डॉग. Now the next one is what does it behove me? Who said? ये बात किसने कही कि क्या चीज़ मुझ पर शोभा नहीं देती है. So that is ब्राह्मण. किसने कही थी? ब्राह्मण ने कही थी. Okay. Now let's fill in the blanks. Fill in the blanks are here. So the first is dash was given a kid in arm by a villager. तो ब्राह्मण was given a kid in arm by a villager. Okay. The next second is the three cheats moved toward the dash. The three cheats moved toward the Brahmin. Okay. It's shameful for you to do a dash. It's shameful for you to do a hideous job. I have got it in dash from one of the villager. I have got it in arms from one of the villager. They feasted on the dash and dash with dash and dash that night. They feasted on kid with rice and wine that night. Okay. So now the next are true and false. The Brahmin lived in a village. क्या ब्राह्मण एक विलेज में रहता था? So that is true. Yes. The Brahmin was given a cup in arm by a villager. क्या ब्राह्मण को एक कप दिया गया था विलेजर ने? तो no, false. The Brahmin made 3 cheats on the way. ब्राह्मण को रास्ते में 3 cheats मिले. So that is true. The cheats killed the Brahmin. जो cheats थे क्या उन्होंने ब्राह्मण को मार दिया था? So false. नहीं. The cheats lifted the kid and went away. cheats ने kid को उठाया. That means बकरी के बच्चे को उठाया, गोट के बच्चे को, और चले गए. So yes, this is true. Okay. Now the next are why did the Brahmin used to go from village to village? जो ब्राह्मण था वो एक जगह से एक विलेज से दूसरे विलेज क्यों जाता था? So the Brahmin used to go from village to village begging alms and food. वो किस लिए जाता था? फूड और आम लेने के लिए जाता था. ठीक है. What did the villager gave the Brahmin in alms? ब्राह्मण को क्या दिया गया था आम में? तो ब्राह्मण gave a kid in arm to a Brahmin. तो विलेजर ने ब्राह्मण को क्या दिया? किड दिया था. ठीक है. Who made the Brahmin the way? In the way, रास्ते में ब्राह्मण को कौन मिले थे? तो हमने लिखा the 3 cheats made the Brahmin in the way. रास्ते में ब्राह्मण को 3 cheats मिले थे. What did the cheats want? cheats क्या चाहते थे? The cheats wanted to that eat kid. तो जो चीट थे वो चाहते थे कि वो उस जो बेबी गॉट है उसे खा जाए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द फर्स्ट चीट से टू ब्राह्मण. तो सबसे पहले फर्स्ट चीट ने क्या बोला था ब्राह्मण को? तो द फर्स्ट चीट सेड वेयर आर यू कैरिंग अ डॉग? ओ लर्न ब्राह्मण. तो ठीक है. तो यहाँ पर उसने क्या बोला था कि मतलब पढ़े लिखे ब्राह्मण, मतलब एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी ब्राह्मण. ठीक है, ज्ञानी बोलना चाहता था वो. तो ज्ञानी ब्राह्मण आप इसे कहाँ, एक डॉग को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है. अब यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना है कि इनके बेबीज़ का नाम क्या है. लाइक यंग वन ऑफ कैट. कैट की बेबी को क्या बोलते हैं? किटन.
यंग वन ऑफ हैन, हैन के बच्चों को क्या बोलते हैं? चिक। यंग वन ऑफ बिच, बिच के बच्चों को क्या बोलते हैं? दैट इज़ पपी। और यंग वन ऑफ टाइगर, दे आर कब। यंग वन ऑफ काव, दे आर काफ। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर कैट के बच्चे को, हैन के बच्चे को, बिच के बच्चे को, टाइगर के बच्चों को और काऊ के बच्चों को क्या बोलते हैं ये हमने पढ़ा। ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग देखेंगे कि हाउ का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, हाउ का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। हाउ, एक्चुअली हाउ का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ? दैट इज़ कैसे। ओके, ये आपने कैसे किया? हाउ डिड यू डन दिस। ठीक है, जैसे हम पूछते ना ये आपने कैसे किया, आप कैसे आए, तो वो सब क्या है? हाउ। ओके, कैसे, दैट मीन हाउ। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है वी कैम टू स्कूल बाय रिक्शा, हम स्कूल रिक्शा से आए। तो अगर हम इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो कैसे बोलेंगे? आप स्कूल कैसे आए? सो द क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, हाउ डिड यू केम टू स्कूल, हाउ डिड यू केम टू स्कूल। सो जो हाउ है वो सबसे पहले आ गया, फिर हमने डिड का यूज़ किया, हाउ डिड यू केम टू स्कूल। ओके, इसी तरह से बच्चों आगे के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, दैट थोड़ा बहुत आप खुद भी करना सीखो। ठीक है, नाउ ये जो है प्रोनाउंसिएशन वाला, तो प्रोनाउंसिएशन में बेटा देखो हम लोगों को क्या है कि इन टर्म्स को बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो टर्म्स दी गई है इन्हें हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुक, कोल्ड, कैट, कैटल। ठीक है, कूल, सेल, सिलेंडर, साइकिल, रेस, फेस। तो यहाँ पर हम लोगों को ये कुछ अलग वर्ड्स दिए गए हैं। तो किसी का साउंड तो किससे स्टार्ट होगा? किसी का के से स्टार्ट होगा, कोई एस से स्टार्ट होगा। तो इसे हम जैसे जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। जैसे कस्टम, कस्टम, तो कस्टम की स्टार्टिंग कैसे हो रही थी? कस्टम इस तरह से हो रही थी। स्पेस, स्पेस की स्टार्टिंग स से हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा स्पेस। ऐसे ही सीमेंट, सीमेंट, रेस, केव, केव की स्पेलिंग क को क से प्रोनाउंसिएट हो रहा है। और यहाँ जो रेस है यहाँ पर रेस स जो है यहाँ पर हमें एस का साउंड आ रहा है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स दी गई है जिसमें हमें बताना है कि हर्बीवर और कार्निवर एनिमल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हर्बीवर्स सम एनिमल्स ईट्स अ प्लांट पार्ट दे आर ईटिंग कॉल्ड हर्बीवर। जो एनिमल से प्लांट पार्ट खाते हैं सो दे आर कॉल्ड हर्बीवर। सम एनिमल्स मीट, तो वो क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं, सो दे आर इंक्लूडेड इन कार्निवर। सो इसी बेसिस पर हमें यहाँ पर हर्बीवर और कार्निवर्स को देखना है। लाइक हर्बीवर, ओके, जैसे काऊ क्या है? हर्बीवर है। सो द टाइगर इज कार्निवोर, द एलिफेंट इज हर्बीवर एंड देन द ईगल इज कार्निवर, द डेयर इज हर्बीवर एंड द फॉक्स इज कार्निवर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो क्यों नहीं दिया। तो बेटा कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे दैट मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी एक्सप्लेनेशन टाइमली, तो इसलिए मैंने अभी प्रोवाइड करवाया। ओके, थैंक यू।